Hello my dear students. In previous lecture we discussed about the stoichiometry. So let us first solve some problems given in our textbook as an illustration and in exercise. Um, these problems are regarding stoichiometry. So read first question that is already written on your screen, and that one is calculate the amount of water in gram produced by combustion of 16 gram of methane. So for that first you require balance reaction. So already balance reaction is on your screen. See, this one is the balance reaction of the combustion of methane. Write down first that reaction like this. CH4 plus 2O2. For stoichiometric calculation and the next topic is of limiting reagent, you require balance reaction. Remember, CO2 gas plus twice H2. What is the question asked? 16 gram methane. How much amount of water is produced? So first find out the molecular mass of methane. Here 16 gram methane, and here 2 into 18. 2 moles are there. 1 mole weight is 18 gram per mole. So here is 2 mole multiplied by 18 is equal to 36 gram produce. You don't have to do this much. Simple is that. 16 gram methane. Methane molecular mass is 16. See here already you know. 12 gram carbon, 4 gram hydrogen. Total 16 gram. So that side you can get 2 moles of water. 1 mole water means 18 gram. Then 2 mole water is nothing but 36 gram. 36 gram is your answer. Or you can do like this also. CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2. So 1 mole methane gives 2 mole water. 1 mole is nothing but 16 gram. Then 2 mole is nothing but 32 gram. So when 16 gram methane combusts, we get 32 gram of water. Very simple calculation. Okay, by using stoichiometry. 1 mole methane gives 2 mole water. Then in gram, 1 mole means 16 gram methane gives 32 gram water. Very simple. Okay, so let us move to the next question. Read it. What is written here? How many moles of methane are required to produce 22 gram carbon after combustion? वही आपको बैलेंस रिएक्शन, अगर आपको बैलेंस रिएक्शन पता नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगा. Combustion of methane, see blue color reaction. Number of carbon gives carbon dioxide and number of hydrogen gives half number of water molecule and then balance oxygen. Very simple. ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इतना. देखिए आप कैसे कर रहा हूं मैं. पहले रिएक्शन लिखिए अपनी बुक में. CH4 plus 2O2 gives CO2 plus twice H2. अब देखिए कितना मुझे हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर. मुझे पहले फाइंड करना है कि मीथेन हाउ मेनी मोल्स रिक्वायर टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आप सीधा मोलिकुलर मास से भी कर सकते हो, ये बैलेंस रिएक्शन है. तो अगर मैं 16 ग्राम मीथेन यूज करता हूँ, ये 16 ग्राम है, तो मुझे मिलता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. कोई शक ना? स्टोक्योमेट्रिक है ये. 1 मोल गिव्स 1 मोल. तो मुझे 16 ग्राम मीथेन में यूज करता हूं तो मुझे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. तो अगर मैं 22 ग्राम
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मुझे कितना ग्राम मीथेन चाहिए? तो सीधा आपका आंसर आ रहा है, देखिए 22 मल्टीप्लाइड बाई 16, फिर से लिख लेता हूँ, CH4 प्लस 2O2 gives CO2 प्लस ट्वाइस H2। गलती से डिलीट हो गया। 16 ग्राम से मुझे मिलता है 44। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलार मास है 44 ग्राम। बैलेंस रिएक्शन से पता चलता है कितना, तो मुझे बनाना है कितना? क्वेश्चन में पूछा है मुझे हाउ मच आस्क्ड 22 ग्राम, तो मुझे कितना मीथेन चाहिए, लेकिन आंसर आपको मोल में फाइंड करना है माय फ्रेंड्स। तो यहां से सीधा 22 मल्टीप्लाइड बाई 16, ये टेक्स्ट बुक मेथड भी आपके सामने है, अगर वो समझ में आए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको चाहिए 8 ग्राम, है ना। 16 मल्टीप्लाइड बाई 22 डिवाइडेड बाई 44, तो 11, और यहाँ पे होगा, ये आधा मोल ही है ना, आधा करना है तो 8 ग्राम ही आएगा इधर। ये इसका आंसर आएगा 8 ग्राम। अब आपको पूछा है मोल, तो मोल फाइंड कर लो, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई W बाई M। W कितना मिला? 8। मोलार मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का? बोलिए, मोलार मास कितना है? 44। तो 8 डिवाइडेड बाई 44.5 मोल, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, नहीं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड, तो डिवाइड बाई 16 करना पड़ेगा ना। यस, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो दिया है। 8 डिवाइडेड बाई 16, आपका आंसर आएगा 0.5 मोल। बता गई समझ में? ठीक है, तो ऐसे सीधी कैलकुलेशन है पूरे। पहले बैलेंस रिएक्शन लिख लो। 16 ग्राम मीथेन मुझे देता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे प्रोड्यूस करना है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे कितना ग्राम मीथेन चाहिए? 8 ग्राम चाहिए। और आपको पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर, तो बाद में मीथेन का मोल फाइंड कर लो। 8 ग्राम चाहिए, 8 डिवाइडेड बाई 16, तो सीधा फॉर्मूला से मोल मिल जाता है। इसी तरह से आप ये सॉल्यूशन कर सकते हो। ये जो है वो वही समझाता है, ये सॉल्यूशन जो है ना, ये पूरा ये सॉल्यूशन ये इसी कंसेप्ट को ही समझाता है, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं लिखा है, ऐसे ही समझा दिया है। ये तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हम कुछ एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम दी है, उसके ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज में प्रॉब्लम, see in exercise there is a fourth number problem is given, calculate the amount of carbon dioxide। क्या है? calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole carbon burn in air। तो पहले तो मैंने जैसा आपको बोला कि आपको पूरा रिएक्शन जो है माय फ्रेंड्स पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें इजी रिएक्शन ही आते हैं, तो पहले तो क्या है वो पहले आप पढ़ लें, हड़बड़ी मत करना, ठीक से पढ़ के समझ के प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये आपका क्वेश्चन है, ये जो रेड कलर में है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा आपके लिए क्वेश्चन है। अब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस, 3 कंडीशन दी है। चलिए पहली कंडीशन पे हम लोग आते हैं। क्या बोला है उसने? 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन एयर, तो ये रहा 1 मोल कार्बन, लिख लो पहले। अब रिएक्शन बैलेंस लिखो, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ ही है, ये रहा, देखिए ये पूरा बैलेंस रिएक्शन है। C प्लस O2 गिव्स CO2। अब पढ़ो, चलो पहला क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन एयर, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा? तो ये रिएक्शन को देखो, सीधा 1 मोल कार्बन देगा आपको, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो सीधा आंसर पहले का आएगा 44, आएगा ना।
तो फर्स्ट आंसर इज 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ये नंबर 1 का सॉल्यूशन है पूरा। देखिए सीधा रिएक्शन से पता चल जाता है ना, डायरेक्ट रिएक्शन से। देखिए 1 मोल कार्बन react with oxygen, it form 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरा, ये पहले का आंसर है पूरा। फर्स्ट आंसर। तो या तो आप 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बर्न करेंगे तो आपको 1 मोल कार्बन एयर में बर्न करेंगे तो आपको मिलेगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 44 ग्राम। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। 1 मोल कार्बन बर्न इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। 1 मोल कार्बन बर्न इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। चलिए सोल्व करते हैं। अब यही रिएक्शन आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन 16 ग्राम दिया है ना, हम लोग ब्लैंक पेज पे चले जाते हैं तो अच्छा रहेगा। क्या क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना। 1 मोल कार्बन इज बर्न विथ 16 ग्राम ऑक्सीजन। और क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। चलिए तो मैं सेकंड नंबर का सोल्व कर रहा हूं। आप पहले बैलेंस रिएक्शन लिख लीजिए। C plus O2 gives CO2। स्टोकियोमेट्रिक ये प्रॉब्लम है सब। C plus O2 gives CO2। अब 1 मोल कार्बन का मतलब क्या होता है कि 12 ग्राम कार्बन react with 32 ग्राम ऑक्सीजन gives us 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 1 ही है। 1 मोल gives 1 मोल। 1 मोल कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब सीधा अगर ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये सीधा हो जाता है। अब आपको कितना दिया है कि 16 ग्राम अगर मैं ऑक्सीजन यूज करूंगा तो मुझे कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सीधा आंसर आ रहा है 16 मल्टीप्लाइड बाई 44 डिवाइडेड बाई 22 ग्राम। मोल से भी कर सकते हो। 1 मोल गिव्स 1 मोल, तो ये ऑक्सीजन कितना है? 16 मीन्स हाफ मोल। हाफ मोल गिव्स हाफ मोल। और सीधा भी पता चल जाता है, अगर 32 मुझे 44 ग्राम दे रहा है तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन आधा कर रहा हूं तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड भी आधा मिलेगा, है ना। इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। लिख लीजिए। चलिए मैं मिटाने जा रहा हूं इसको। थर्ड एग्जाम्पल को पढ़ो, क्या बोल रहा है। 2 moles of carbon are burned with a 16 gram of dioxygen. 2 moles of carbon are burned in a 16 gram of dioxygen. तो चलिए रिएक्शन फिर से लिख लो। 2 moles of carbon when burned with oxygen it gives a 2 moles of carbon dioxide। बैलेंस लिखना है। अब मुझे 4 ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ पे मैं 2O2 करूंगा। आप एक ध्यान में रखना, आप ये तभी कर सकते हो जब आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो। ये लिमिटिंग रिएजेंट से भी हो सकता है, लेकिन ये इजी है, सिंपल रिएक्शन है। तो अब मुझे कितना दिया है? 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, तो ये कितना हुआ? 64 ग्राम। 2 मोल है ना, 2 मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? 64 ग्राम। या तो मोल से भी कर सकते हो। 2 मोल्स गिव्स मी 2 मोल, देन 16 ग्राम बोले तो हाफ मोल गिव्स मी हाउ मच? ठीक है, 2 मोल्स ऑफ, आपको मोल, आप मोल में भी फाइंड कर सकते हैं ना। अगर पूछा है मोल में तो मोल में भी आप फाइंड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे मैं मोल में भी लास्ट में फाइंड करके दिखाऊंगा। कितना मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे? 64 ग्राम ऑक्सीजन। 2 मोल मतलब 64 ग्राम।
तो मुझे मिल रहा है 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल का 44 ग्राम, तो 2 मोल का 88 ग्राम। तो अब मुझे दिया है 16 ग्राम, मुझे यूज करना है 16 ग्राम। हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड आई विल गेट? कितना आता है? मल्टीप्लाई कर दो। 16 मल्टीप्लाइड बाई 88 डिवाइडेड बाई 64। चलो जल्दी कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, या तो सीधा कैलकुलेशन करो। 16 मल्टीप्लाइड बाई 88, 16 मल्टीप्लाइड बाई 22 आएगा। अब ये 22 ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला, उसका अगर मोल पूछते हैं तो मोल कैसे निकालोगे बताओ? यहाँ ऊपर देखिए जगह है स्क्रीन में, वहां पे n मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू W बाय मोलार मास। W कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का? 22 मिला अभी। मोलार मास कितना है? 44। तो हमें हाफ मोल मिलेगा यहीं पे। तो यह रहा आंसर, हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ये देख लो आपके सामने आंसर, हाफ मोल इज प्रोड्यूस्ड। स्टोक्योमेट्री से ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट मोल में लेना है तो मोल रेशियो लो। अगर मैं ये रिएक्शन ऐसे लेता तो मुझे 16 ग्राम, तो पहले मुझे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने पड़ते, ठीक है। डायरेक्ट मुझे मोल में आंसर चाहिए। जैसे कि मुझे पूछा है कि 2 कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे चाहिए 4 ऑक्सीजन 2O2। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 मोल्स गिव्स 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के मोल निकालने पड़ते हैं। मुझे दिए 16 डिवाइडेड बाई 32, मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, दिए है 16 ग्राम, तो ये कितने हुआ? हाफ मोल। तो मैं ये बोल सकता हूं कि हाफ मोल, या तो आप लिख सकते हो 0.5 मोल्स गिव्स मी हाउ मच। तो ऐसे भी हो सकता था। तो आप 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 करो, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पूछे कि वेट निकालो, वो मैं पहले वेट से मोल पे गया, ये मोल से वेट पे जाता हूं, ठीक है। क्या करेंगे? वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास। ये 0.5 को 45 से मल्टीप्लाइड, सॉरी 44 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना लिख लो। अब मुझे क्या करना है? मानो कि आपको पूछा है कि वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना आपका 0.5 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा फॉर्मूला है। 0.5 मिला है, मोलार मास है 45, तो आप देख लो ये कितना आ रहा है। मोल्स को मोलार मास से मल्टीप्लाई कर लो जल्दी। आ रहा है आपका आंसर 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 44, ये आ गया 22 ग्राम। ऐसे भी जा सकते हो, ग्राम से मोल पे जा सकते हो, मोल से ग्राम पे जा सकते हो, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो ये और एक प्रॉब्लम दिया है जो स्टोक्योमेट्री के ऊपर हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए उस प्रॉब्लम के ऊपर, ये रहा ये प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहले ठीक से पढ़िए ये क्या है प्रॉब्लम। चलिए, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, ध्यान से पढ़िए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम फाइंड करिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड करिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन फाइंड करिए।
नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स ऑफ इथेन आपको फाइंड करने को बोला है। कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट कर दो। क्या करेंगे आप बोलिए। पहले तो आपको क्या दिया है, 3 मोल्स ऑफ इथेन, तो ऐसे लिख लो 3 मोल्स ऑफ इथेन। है ना, चलिए लिखते हैं 3 मोल्स ऑफ इथेन। तो अब देखिए 3 मोल्स ऑफ, एक मोल में कितने हैं, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो 3 मोल में मैं पहले यहाँ कैलकुलेशन ही कर लेता हूं। मेरे पास 6 3 2 जा 6 कार्बन रहेंगे और मेरे पास 18 जो है वो हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक मोल में, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक मोल इथेन में 2 मोल कार्बन है एंड 6 मोल हाइड्रोजन है। मोल में बोलेंगे तो सब मोल में ही बोलेंगे। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि एक मोलेक्यूल इथेन है मेरे पास, तो उसमें 2 एटम कार्बन के हैं और 6 एटम हाइड्रोजन के हैं। एकदम ध्यान से सुनो, मैं ऐसे बोलता हूं कि मेरे पास एक एटम इथेन का है, सॉरी एक मोलेक्यूल इथेन का है, तो उसका मीनिंग क्या रहेगा, मेरे पास 2 एटम कार्बन के हैं और 6 एटम हाइड्रोजन के। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास 3 मोल इथेन है, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास 6 मोल कार्बन है और 18 मोल हाइड्रोजन एटम है। तो पहला, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कितने कार्बन एटम, तो ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर, देख लीजिए 6 मोल्स ऑफ कार्बन, ये रहा आंसर 6 मोल्स ऑफ कार्बन। अब दूसरा पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये रहा 18, 6 3 जा 18। बैलेंसिंग में भी हम ये स्टोक्योमेट्री ऐसे करते थे, ये रहा आंसर 18 मोलेक्यूल, मोलेक्यूल नहीं बोलते उसको, एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 18 मोल्स ऑफ एटम, ये मोलेक्यूल्स नहीं है, ये एटम है। मोलेक्यूल में 2 सेम एटम या तो 2 डिफरेंट एटम कंबाइन होते हैं, उसको मोलेक्यूल बोलते हैं, जैसे H2O, H2O2। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा आंसर। अब तीसरा क्या है कि नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स ऑफ इथेन। अब आपको कितने मोल इथेन दिए हैं, 3 मोल। अब वो फॉर्मूला, मोल्स से मोलेक्यूल्स कैसे निकालोगे आप, टेबल देख लो। तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगेड्रो नंबर। मोल दिए है आपको 3, उसको एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ये रहा आपके सामने आंसर 18.066 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। उसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर ले जाना है तो 1 पॉइंट, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 1.807, इसको साइंटिफिक नोटेशन में, यहाँ इक्वल टू नहीं करना है, आंसर के सामने इक्वल टू करके लिख लो। ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, मैं ऊपर जगह वहीं पे लिखता हूँ, 1.807 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। ये साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया आपका। एक डिजिट लेफ्ट साइड जंप करना है, LIRD रूल लगा के। हो गया आपका सॉल्यूशन पूरा। स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पे थोड़ा सोचना है, मोल, मोलार मास की जरूरत है, मोलार मास फाइंड कर लो, मोल की जरूरत है, मोल फाइंड कर लो, और सीधा रिएक्शन में रेशियो ले लो। ये तो अगले वाला जो प्रॉब्लम था ना टेक्स्ट का, इससे इजी प्रॉब्लम है। अगर आपको मोल कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया है, स्टोक्योमेट्री पूरी समझ में आ गई है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सब अब मैं मिटाने जा रहा हूँ, सीधा सॉल्यूशन भी आपके सामने है, समझ के करिएगा तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं एक कॉन्सेप्ट नया लेने जा रहा हूँ, दैट कॉन्सेप्ट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सो लेट अस डिस्कस अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट माय फ्रेंड्स। आई हैव सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टोक्योमेट्री। अगर कोई क्वेश्चन है तो देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ओके। तो चलिए चलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ।
See my friends, the concept of limiting reagent is very very easy. What is called limiting reagent? तो जब भी आप कुछ बनाने लगते हो तो कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा कि ये चीज़ कम पड़ गई, ये ज़्यादा है, ठीक है, तो जो ज़्यादा होती है वो बच जाती है, मतलब कि वो लेफ्ट हो जाती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हमारे पास होता है, कुछ ना कुछ कम रहता है। तो हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज डिपेंड अपॉन दैट लिमिटिंग मटेरियल। तो काफ़ी केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं माय फ्रेंड्स कि सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर आर नॉट एग्जैक्टली इन द सेम अमाउंट एज द रिक्वायर्ड। तो कभी कभी हम कम डालते हैं तो बोले कि ये जितना है उतना है, इसमें हमने नहीं है तो प्रोडक्ट इतनी नहीं बनेगी। तो इस हिसाब से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन देते हैं। चलिए, द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड व्हेन रिएक्शन गोस ऑन कंप्लीशन। अगर आप लेबोरेटरी में कोई रिएक्शन करते हैं, एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट डाल के, तो एक रिएक्टेंट अगर आपने कम डाला तो वो पूरा यूज हो जाएगा, और जो रिएक्टेंट ज्यादा डाला वो बच जाएगा, वो उसके पास तो रिएक्शन करने के लिए दूसरा रिएक्टेंट है ही नहीं, तो क्या करेगा। तो जो पूरा कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में उसको ही हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और हमारी फाइनल प्रोडक्ट कितनी बनेगी, हमारी फाइनल प्रोडक्ट कितनी बनेगी, दैट इज डिपेंड अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट, नॉट डिपेंड अपॉन एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। अगर आप एक बुक में लिख रहे हो और आपके पास एक ही बॉल पेन है, तो बुक के पेज में आप लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, मानो कि आधी बुक भर गई और आपकी बॉल पेन खत्म हो गई, तो अब आपके पास पेजेस है लेकिन बॉल पेन नहीं है। तो रिएजेंट दो थे, एक बुक और एक बॉल पेन। अब बॉल पेन खत्म हो गई, बुक में तो अभी पेजेस ब्लैंक है लेकिन बॉल पेन खत्म हो गई, दूसरी है नहीं, तो बॉल पेन जो है वो आपके लिए लिमिटिंग रिएजेंट है। कितने पन्ने लिखे जाएंगे दैट इज डिपेंड अपॉन बॉल पेन, नॉट डिपेंड अपॉन बुक्स पेजेस, ठीक है। तो अब जो रिएक्टेंट बच जाता है, मतलब द रिएक्टेंट्स विच आर लेफ्ट आफ्टर कंप्लीशन द रिएक्शन, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। चलिए मैं एक बाहर का एग्जांपल लेता हूँ। कोई एक कंपनी है जो कार बना रही है, उसके पास 600 टायर्स है, 400 ब्रेक है, 350 स्टीयरिंग है और 100 इंजिन है। तो एक कार में एक इंजन लगता है, तो कितनी कारें बनेगी, 100 कार बनेगी। एक कार में एक स्टीयरिंग लगता है, तो 350 मेरे पास स्टीयरिंग है, 350 में से कितने स्टीयरिंग यूज होंगे, 100, तो इसमें 250 बच जाएंगे, मतलब कि ये एक्सेस है। एक कार में एक आगे और एक हैंड ब्रेक, दो ब्रेक लगती है, तो 100 कार में 200 ब्रेक्स हम यूज करेंगे। एक कार में दो ब्रेक होती है, एक लेग ब्रेक एक हैंड ब्रेक, ठीक है। तो एक कार में दो ब्रेक लगती है, तो 100 इंजन से 100 कार बनती है, तो हम मुझे 200 ब्रेक्स चाहिए, तो इसमें मेरे पास है 400, तो और 200 ब्रेक्स बच जाएंगे। एक कार में ये 600 टायर्स, कितने, 600 टायर्स। एक कार में मानो कि 4 टायर लगते हैं, तो 100 कार के लिए मुझे 400 टायर्स चाहिए, तो और 200 टायर बच जाते हैं। तो इन चारों जो मटेरियल्स मैंने लिखे उनमें से कितनी कार बनेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कार इंजन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कार इंजन खत्म हो जाता है, अब ये टायर्स ब्रेक स्टीयरिंग सब पड़ा रहेगा, तो ये कार इंजन हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि कितनी कार बनेगी दैट इज डिपेंड अपॉन इंजन्स। और ये भी हो सकता है कभी स्टीयरिंग भी लिमिटिंग रिएजेंट, हमारे इंजन, हमारे पास इंजन 100 है लेकिन हमारे पास ब्रेक सिर्फ 50 है, तो फिर हम कार नहीं बना सकते, ठीक है। इंजन तो लग जाएगा लेकिन ब्रेक नहीं लगेगी, तो ब्रेक कम है तो ब्रेक
लिमिटिंग रिएजेंट, टायर्स कम है तो टायर्स लिमिटिंग रिएजेंट है, स्टीयरिंग कम है तो स्टीयरिंग लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे मैंने इंजन को लिमिटिंग रिएजेंट सेट करके आपको एग्जांपल दिया ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, आ गया समझ में? और काफी एग्जाम्पल आप अपने आप बना सकते हो। अब आप भी समझा सकते हो कि चलो ऐसे ऐसे लिमिटिंग रिएजेंट होता है। चलिए, ये तो मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया, मैं एक केमिकल रिएक्शन लेके समझाता हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। चलिए, ये एक बैलेंस रिएक्शन। और एक बात याद रखना कि मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही चाहिए, ये मस्ट है, मस्ट। आप इसमें बिल्कुल गलती मत करिएगा। For deciding of limiting reagent, I require balanced chemical equation. Remember. तो अब इसकी स्टोक्योमेट्री क्या है? 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन, यहाँ 1 मोल इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 2 1 2 की स्टोक्योमेट्री है, मतलब कि 2 मोल और 2 मोल मुझे दिए गए कि भाई आप 2 मोल हाइड्रोजन ले लो ये बीकर में, और ये दूसरा बीकर ले लो जिसमें 2 मोल ऑक्सीजन है। ठीक है, अब आपको वाटर बनाना है तो मैंने 2 2 मोल ले लिए, तो मेरे लिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहेगा? तो मुझे स्टोक्योमेट्री से यहाँ पता चलता है कि 1 मोल ऑक्सीजन पे मुझे 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं 2 मोल ऑक्सीजन लेता हूं तो मुझे 4 मोल हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन आपने दिए तो मुझे 2। तो ऑक्सीजन खत्म नहीं होगा, हाइड्रोजन मेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि चाहिए मुझे 4 मोल, दिए हैं मुझे 2। ठीक है, तो इस केस में ये हाइड्रोजन जो है, दिस हाइड्रोजन माय फ्रेंड इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को हम शॉर्ट में लिखेंगे LR, और एक्सेस रिएजेंट को हम शॉर्ट में लिखेंगे ER। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो मेरा ER है, एक्सेस रिएजेंट। कोई शक? बहुत बढ़िया टॉपिक, बैलेंस इक्वेशन से सीधा। मुझे जो दिया गया है उसमें जो कम दिया है वो LR है, जो कम दिया है उसके ऊपर ही मेरी प्रोडक्ट डिपेंड करेगी। तो अब 1 मोल मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हमारे इस रिएक्शन में कौन सा है? हाइड्रोजन। तो 2 मोल हाइड्रोजन मुझे 2 मोल वाटर देता है, तो यहाँ पे 2 मोल ही दिया है तो मुझे वाटर 2 मोल ही मिलेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन ज्यादा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे पास इंजन ही नहीं है तो आप ब्रेक मुझे ला के दो, टायर के ढगले कर दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो ये मैंने समझा है नीचे, ये आपके सामने रहा फाइनल आंसर। H2 इज LR, O2 इज ER। ER बोले तो एक्सेस रिएजेंट, LR बोले तो लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऑक्सीजन तो मेरे लिए लेफ्ट बचेगा ही बचेगा, हाइड्रोजन जो है वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि वो मेरे पास 2 मोल है। अगर मैं 2 मोल ऑक्सीजन लेता हूँ तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री मुझे चाहिए 4 मोल, लेकिन कम दिया है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हर बार इतना सोचना पड़ेगा? तो कभी कभी गलती भी हो सकती है। आप टेंशन मत लो, मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ जिससे आपको सीधा लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा। थोड़ा मैथमेटिकल में शॉर्टकट आपको दे रहा हूँ। तो ये रही आपके सामने ट्रिक टू फाइंड LR। तो पहला क्या करना है आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट्स? पहला करना है बैलेंस रिएक्शन लिख लो। अगर आपको डायरेक्ट मोल दिए हैं कि इतने इतने मोल है, अभी मैंने एग्जांपल लिया ना, 2 मोल हाइड्रोजन, तो सीधा मोल लिख लो, गिवन मोल। अगर ग्राम में दिया है तो पहले फॉर्मूला यूज करके मोल को फाइंड कर लो और वो रिएक्टेंट के नीचे लिख लो। एक बात ध्यान में रखना, द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, नॉट डिपेंड ऑन एक्सेस रिएजेंट। यहाँ पे कहीं पे नोट भी मैंने लिखी है, अभी आएगी। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने मोल फाइंड किए हैं या तो आपको दिए गए हैं रिएक्टेंट के मोल, उसको स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जिसका भी डिवीजन कम आएगा वो आपके लिए LR होगा। Less the value of division is LR, and remaining reactants you can say ER directly। आपको काम करना है LR फाइंड करना, बाकी सब ER हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि दोनों का डिवीजन सेम रहा तो ना ही कोई एलआर है ना ही कोई ईआर है। ठीक है, आपको 2 मोल हाइड्रोजन दिया होता, 1 मोल ऑक्सीजन दिया होता और बाद में बोलते कि फाइंड करो, तो कोई ईआर नहीं है, कोई एलआर नहीं है, पूरा हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाता, पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिमाग चलाना है। ये रहा नोट, मैंने अभी अभी बोला, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड ओनली अपॉन एल आर नॉट ऑन ई आर। तो जहाँ पे भी रिएक्शन होगा तो देखिए प्रैक्टिकली मैंने एक रिएक्शन लेके समझाया कि एल आर कैसे फाइंड करना। चलिए पहला स्टेप क्या बोला मैंने, चलो जल्दी से देखो, पहला स्टेप क्या बोला, बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लो है, बैलेंस करना मैंने सिखाया है। बैलेंस में रिएक्शन जो है वो इजी रहेंगे, डिफिकल्ट नहीं रहेंगे, आप टेंशन मत लेना, सीधा हो जाएगा। अब आपको मोल दिए गए हैं, चलो मुझे मोल दिए गए हैं, आगे वाला प्रॉब्लम ही है, पढ़ लेना एक बार। 2 मोल इसके दिए हैं, 2 मोल इसके दिए। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कौन से हैं उसके बैलेंस रिएक्शन के, वो देख लो। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है यहाँ 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। अब मैंने क्या तीसरा स्टेप बोला, ये पहला स्टेप है, ये गिवन मोल लिख लो, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है कि जो आपके मोल से ये 2 मोल्स यहाँ पे रख दिए, ये 2 मोल्स यहाँ पे रख दिया, ये 2 स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे यहाँ पे डिवाइड कर दिया, एक स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया, इसका आंसर आया 1, इसका आंसर आया 2। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में क्या देखते हो आप, बोलो किसका रेशियो कम है, यहाँ पे 1 है तो कम है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है और ऑक्सीजन जो है वो हमारा एक्सेस रिएजेंट है। कितना इजी थिंग है ना, बहुत इजी है। कोई भी रिएक्शन में आप एलआर ऐसे फाइंड कर सकते हो, इजी 4 स्टेप में जाना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ H2O डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन नॉट डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। अब आगे कैलकुलेशन आएगी कि एलआर से हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको एलआर फाइंड करना है, लिमिटिंग रिएजेंट। ये पूरी बात समझ में आ गई, ये पूरा लिख लो, शॉर्टकट भी लिख लो, ट्रिक जो मैंने दी है फाइंड करने की वो भी लिख लो। तो कुछ प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड हम लोग सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ एक्सरसाइज में है, तो चलिए हम उसके ऊपर चलते हैं। तो जो हमारी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन दिया है ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि क्या लिखा है उसमें। ठीक है, तो 50 किलोग्राम क्या है, 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस। आपको समझ में आया कि ये हेबर प्रोसेस है ना, ये क्या है, हेबर प्रोसेस है। अब आपको ये टेक्स्ट बुक की मेथड से सोल्व नहीं करना है, जो मैंने ट्रिक दी है उस हिसाब से आपको जाना है। ठीक है, बहुत वो मत करिएगा ज़्यादा। धीरे धीरे सोचिए। पहला स्टेप मैंने क्या बोला है आपको कि आपको लिखना है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या लिखना है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। चलिए मैं लिख लेता हूँ नीचे बैलेंस केमिकल रिएक्शन, आपको समझा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन लिख लीजिए, नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। ये 50 किलोग्राम है तो आप 50,000 ग्राम कर दो, ये 10 किलोग्राम है तो इसको 10,000 ग्राम कर दो। ठीक है, इसका मोल फाइंड कर लो, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 28, यहाँ पे आएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 2। तो किसका कितना मोल मिला आपको, पहले ये 50,000 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28, तो 28 कर दो, तो वो आएगा आपके सामने 1786 समथिंग, ये आएगा 1786 मोल।
और ये 10,000 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आएगा 5,000 मोल। ठीक है, अब इसका रेशियो ले लो। इसका जो है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, एक जगह पे 1 है, ये 1 है और ये 3 है। तो आप 16, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इज इक्वल टू 1786 सॉरी 1786 डिवाइडेड बाई 1, 5000 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका रेशियो तो 1786 ही आएगा। इसका कितना आएगा, 5000 डिवाइडेड बाई 3 तो रहेगा 1667। यह आ रहा है 1667, राउंड फिगर में मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब कौन ज्यादा है इसमें और कौन कम है, ये 1786 डिवाइडेड बाई 1 मैंने जो स्टेप दिए उसी तरह मैं जा रहा हूं। तो ये कम आ रहा है तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन जो है वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। डिसाइड हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहला आंसर आपको मिल गया कि हाइड्रोजन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। ये देखिए, हेंस हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और अब आपको वो पॉइंट याद रखना है जिसमें मैंने, दिस इज सोल्ड गिवन ऑल्सो इन अवर टेक्स्ट बुक। तो फाइनल आप आंसर आपके पास है। मैंने जो मेथड आपको बताई उस मेथड से आप सॉल्व करिएगा। पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करिए, बाद में आपको पूछा है कि कितना एमोनिया होगा तो सीधा रेशियो लगा लीजिए, और मैंने जो बोला कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगी। तो उसका ही रेशियो लेना है कि 3 मोल मुझे 2 मोल एमोनिया देते हैं, तो मैंने लिया है यहाँ पे कितना मोल, 10,000 किलोग्राम था ना, तो यहाँ पे 50,000 लिख लिया। 50,000 नहीं है, ये 5,000 है, ये निकाल देना। ठीक है, 5,000 पे कितना मिलेगा। ठीक है, देखिए जब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट तय हो चुका है कि लिमिटिंग रिएजेंट हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, वो कैलकुलेशन हमने कर दी, हाइड्रोजन है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब बात आती है हाउ मच एमोनिया इज प्रोड्यूस। तो फिर से आप एक बार रिएक्शन लिख लो ऐसे, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस 3 moles of hydrogen gives 2 moles of ammonia। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि 3 मोल हाइड्रोजन से हमें 2 मोल एमोनिया मिलता है, 2 moles ऑफ एमोनिया। तो हाइड्रोजन के मोल कितने हमारे 5,000, 5,000 मोल से हमें कितना मोल एमोनिया मिलेगा। तो मोल्स ऑफ एमोनिया इज इक्वल टू 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। तो हमको मोल यहाँ पे मिलेगा 3333.3 समथिंग करके आपको मोल आएगा। अब वेट फाइंड कर लो, वेट ऑफ एमोनिया इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ एमोनिया। मोल हमको मिला है 3333.3 समथिंग और इसका मोलर मास है 17। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 56666 ऐसा करके। तो आपको ये 1000 से डिवाइड कर दो तो 56 पॉइंट समथिंग किलोग्राम। अगर यहाँ पे कैलकुलेटर में कहीं पे भूल है तो आप ठीक से कर लेना, लेकिन नियर अबाउट यहाँ पे 56.1 किलोग्राम आंसर आ रहा है, हमारा 56.6 आ रहा है। ठीक है, तो चेक कर लो, नियर अबाउट 57 किलोग्राम आ रहा है, यहाँ पे 56.1 किलोग्राम आ रहा है। तो राउंड फिगर में कन्वर्ट करते जाना। हाँ, वो हम लोगों ने राउंड फिगर में कन्वर्ट किया है इसलिए इतना डिफरेंस आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप राउंड फिगर में कन्वर्ट करके या तो पॉइंट वाली फिगर रख के भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेथड ये है। इज इट क्लियर? ओके, और एक दो प्रॉब्लम है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।